Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Okay, beta. So we'll be continuing Walaikum salam. from the last thing that we did, and today we'll be ending this chapter finally, the first chapter that is atomic structure, which contains like so many different things that are very much important for us to study. So from the start, coming up till here, the last thing that we were discussing was electron shells. So I'll just give you all a quick recap of it if some of you haven't gone through the recordings, and then we'll move on to the next few things that we have left in this chapter. Okay, one more thing I would like to ask, that how many of you have done the homework? Obviously, those students who were there from those classes who know the concept of finding the average mass from the isotopic abundance, आप में से कितनों ने बेटा homework complete किया है? Some of you have sent me, so I checked that, but others, I would also say that आप लोग अगर कर चुके हो, you can send me. And those of you who have done, सर डन वैसे मैंने आपको सेंड कर दिया, आपको मिला नहीं व्हाट्सएप पे? okay, ठीक है, मैं check कर लूंगा. Okay, okay, sure, sure. Every one of you, I know I gave it a bit late, so you can like give me even by tomorrow, all of you. Yeah, yeah, I know, Hamna, I saw that, I checked, it was all correct. So for others, you can just send me even by tomorrow. So we shall now continue with the electron shells. And like quickly, I just discuss a bit few things of the last class, like the before one. That was the concept of isotopes. Yes, Hamza, but actually, as I have given you the class recordings of the previous ones, no? That is just for the reason that you can just have the idea of all of that one by one, so that you can just check them in line. But I'll just give you a quick recap. This is like the chapter Atomic Structure, the very first chapter we generally consider, although we have states of matter as well as the first one, but we have discussed that with the syllabus discussion and a few of this in the very first class of atomic structure. And then we came towards the basic things, matter, element, atom, and then the subatomic particles over here. That is all like covered into the previous recordings. You can check from there. Then what is particularly the structure of an atom, the proton number, the mass number, the chemical symbol, which is the identity of an element, the neutrality of an atom, and then the last topic, like from the previous class, we did isotopes, because in the previous class, particularly, we focused on electron shells, and before that, we thoroughly did isotopes. So, isotopes is a very important topic in this chapter of atomic structure. Isotopes are atoms of the same element with same number of protons and electrons, but with different number of neutrons. This is the main thing. And then we calculated the average mass of the elements by the given isotopic abundance of all the elements that we were discussing. And then I gave the students a bit homework for these things, for the calculation of average masses. And then we jumped on towards the last thing that we were doing, that was electron shells. ठीक है बेटा? So in electron shells, first of all, the very important thing you need to know is this formula, that is 2n square. And this formula is actually helping us to understand and to know that at every energy level, at each energy level, how many electrons the shell, that particular energy level, can hold. So the electron shells are also known as principal quantum number. बेटा हमने जो atomic structure पढ़ा है उसमें you can see over here that this is the atomic structure. बेटा atomic structure में क्या होता है बेटा, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है मेन, सब very important thing which is in the most center of the atom is the nucleus, which comprises of the protons and the neutrons, and they do not come out of the nucleus. And then
एक एटम में बेटा एक शेल होता है और फिर उसके बाद मल्टीपल लेवल्स होते हैं एनर्जी के, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। सो इन ऑर्डर टू नो दैट एट ईच एनर्जी लेवल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला विच वी डिस्कस्ड ओवर हेयर इन आवर लास्ट क्लास, कि इलेक्ट्रॉन शेल्स जो होते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, उनमें ये पता लगाने के लिए कि कौन से शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये फॉर्मूला हम अगर यूज करेंगे तो वी जस्ट हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू जस्ट प्लेस द नंबर ऑफ शेल ओवर हेयर इंस्टेड ऑफ दिस एन, उसका स्क्वायर ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, एंड देन वील गेट द आंसर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वन का स्क्वायर हो जाता है बेटा वन, दैट इंटू टू बिकम्स टू, द फाइनल आंसर इज टू। देयरफॉर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रॉन। द फर्स्ट शेल कैन होल्ड up to two electrons. Why I have written up to? Because it is not the case कि सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट। अगर उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ एक ही आएगा ना, जब दो है ही नहीं तो दो कैसे आ सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बट दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट शेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूपलेट। वाई वी यूज दिस टर्म ड्यूपलेट? बिकॉज डुअल, डुओ, डाई, दीज आर द टर्म्स यूज फॉर टू, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ड्यूपलेट। अच्छा, उसके बाद व्हेन वी प्लेस टू इन दिस फॉर्मूला टू नो दैट सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, तो टू का स्क्वायर हो जाता है फोर, फोर इंटू टू इट बिकम्स एट। दैट मीन्स द सेकेंड शेल हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एट इलेक्ट्रॉन्स। पहले में जब दो आ गए उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो सेकेंड शेल में फिल होंगे अंटिल इट फिल्स अप टू एट इलेक्ट्रॉन्स। ये होते हैं बेटा एनर्जी लेवल्स, ठीक है। कैसे होते हैं एनर्जी लेवल्स, ये बताना बहुत जरूरी है। तो बेटा यहां पर आप देख सकते हो, आई बी ड्रॉइंग सम सर्कल्स। ये सबसे पहले मैंने बना दिया बिल्कुल बीच में। दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड न्यूक्लियस इज, आई एम जस्ट शोइंग इट एज पॉजिटिव। वाई? अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे बेटा कि हाउ डू यू से दैट अ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, या हाउ डू यू नो दैट अ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, एज इट कंटेन्स प्रोटॉन्स इनसाइड इट, बिकॉज न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर कंटेन्ड है बट न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं है। देयरफॉर द चार्ज which is there inside the nucleus, on the nucleus, is due to the presence of the protons inside it. Therefore the nucleus of an atom is always going to be positive. तो ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। अराउंड दिस वी हैव दिस, एंड देन one more of it a bit enlarged, ठीक है, and then even a bit more enlarged, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये नंबर ऑफ शेल्स हैं। पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की होती है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दिस विल बी फुली फिल्ड। दिस इज द सेकेंड वन, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। जैसे ही आठ आ जाएंगे इट विल बी फुली फिल्ड, ठीक है। But for the third one, what I have written over here, you can see if you place 3 over here in this bracket, 3 square becomes 9 and 9 into 2 it becomes 18. So 18 is the maximum limit. But for the third one, I actually gave you all an example. If I remember, I gave you that example. आप जब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज के लिए क्लेम करते हो ना, इन शॉर्ट आई कैन जस्ट टेल यू एट दिस मोमेंट, जब आप किसी चीज के लिए क्लेम करते हो या आप कोई चीज के लिए जो है फॉर एग्जाम्पल
एक बार सेट कर देते हो कि आई विल बी हैविंग दिस मच ऑफ फूड, और आई विल बी हैविंग दिस मच ऑफ स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, कुछ भी, तो आप उसे हर दफा फुलफिल नहीं कर पाते, या फिर आप शायद जितना सोचते हो कि ये आपने आपने ये कर लेना है या फिर अभी कर सकते हो, उतना नहीं कर पाते हो। तो दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, कैन एंड डज। तो तीसरे शेल में क्या होता है बेटा, तीसरे शेल की जो कैपेसिटी है दैट इज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स उसे लगता है कि वो अपने अंदर फिल कर लेगा, बट जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है अचानक से कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे पास आ गए हैं तो इट इज मोर देन इनफ, एंड आई शुड स्टॉप ओवर हेयर, एंड आई शुड नाउ सेंड द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द फोर्थ शेल। ठीक है बेटा। तो इसी वजह से व्हाट आई हैव रिटन ओवर हेयर, द थर्ड शेल कैन होल्ड अप टू 18, कैन होल्ड अप टू, कैन होल्ड अप टू 18। इन सब कैन को मैंने क्यों इस तरह से अलग कलर में किया हुआ है, बिकॉज दिस एक्चुअली मीन्स कि ये उसका मैक्सिमम लिमिट है जो उसे लगता है कि मैं कर सकता हूं, 18 इलेक्ट्रॉन जो मेरी मैक्सिमम लिमिट है, बट इट डज होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली एज इट गेट्स स्टेबल। जैसे ही बेटा उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है, इनफ स्टेबल हो जाता है, दैट इज द थिंग। ओके बेटा, सो अब हम अगर बात कर रहे हैं थर्ड शेल की, तो यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली, दैट आपसे अगर ये पूछा जाता है दैट द थर्ड शेल कैन होल्ड अप टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, कैन होल्ड अप टू, तो आप कहोगे 18, but actually it does hold 8 electrons only. So this is the actual difference that you need to know, that you must know, कि वो कर सकता कितने हैं 18, करता कितने हैं 8, दैट इज द डिफरेंस। तो होता ये है कि बेटा जैसे ही हम ये देखते हैं कि थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं एनी हाउ सम हाउ, तो हमारा जो फोर्थ शेल है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना शुरू कर देता है। These are considered as the electron shells, or they are considered as energy level। ठीक है बेटा, अब ये एनर्जी लेवल वन बाय वन इंक्रीज हो रहा है, और अगर सबसे कम एनर्जी लेवल जो है वो पहले शेल का है तो वो क्यों है, that is something which you need to understand very carefully. I'll be giving you an example which might be interesting for you to understand। बेटा ये आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, अच्छा मैं आपसे पूछ भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो सबसे पहला शेल होता है बेटा उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जो सबसे पहला शेल होता है द फर्स्ट शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सेकेंड शेल की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, थर्ड शेल की एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है, और फोर्थ शेल की एनर्जी उससे भी ज्यादा होती है, एंड सो ऑन वी गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ रहा होता है बेटा वैसे वैसे उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। ऐसा क्यों होता है, नाउ दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा आप ये देखो, जो सबसे पहला शेल है बेटा वो एक्चुअली न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा नजदीक है, इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। आई विल बी राइटिंग इट ओवर हेयर फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इवन फर्दर बेटर। The This is very important information. The first shell is closest to the न्यूक्लियस। मैं डायरेक्टली क्लोजेस्ट का वर्ड यूज कर सकता हूं बेटा बिकॉज इट इज एक्चुअली क्लोजेस्ट, सबसे पहले वही है न्यूक्लियस के बाद, एटम में सबसे पहला शेल वही है। सो वी राइट द फर्स्ट शेल इज क्लोजेस्ट
to the nucleus and has the lowest energy. क्यों? And has the lowest energy as it gets maximum attraction फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये बात है समझने वाली। आप देख सकते हो बेटा, न्यूक्लियस मैंने सिर्फ ये पॉजिटिव साइन का बना के से बताना ये चाहा है आपको कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, पहली बात तो क्यों है मैंने आपको इनिशियली बताया था, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, जीरो चार्ज, and protons have a positive charge. So overall the charge which is possessed by the nucleus is positive. So उस पॉजिटिव चार्ज की जानिब से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी तरफ जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा वो किनको मिलेगा? किनको मिलेगा? ये जो बेटा, जस्ट जस्ट गिव मी वन सेकेंड। वो किनको मिलेगा बेटा? वो मिलेगा सबसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को। हमजा यू शुड ऑल्सो लाइक राइट इट एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड इट एट द सेम टाइम। द फर्स्ट शेल इज closest to the nucleus and has the lowest energy as it gets maximum attraction from the nucleus। मैं आपको एग्जाम्पल की बात कर रहा था। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा इसको हम दूर करेंगे और इन नंबर्स की तरफ फोकस करेंगे। बेटा ये आप समझ लो कि जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस है, दिस इज द पेरेंट, ठीक है ना? पेरेंट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं आपके साथ। जनरली हम इस तरह से फिलहाल इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आप कुछ गलत भी करते हो फिर भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है चलो, बच्चा है, ठीक है। तो पेरेंट के लिए, यानी पेरेंट्स अगर दोनों हो गए, एक पेरेंट हो गया आपका, वो कहीं पे बैठा हुआ एक जगह पे, ही इज और शी इज डूइंग द वर्क और समथिंग इम्पोर्टेंट। तो जो सबसे छोटा बच्चा उनका होता है जनरली, जो एक 2 साल का अगर बच्चा है, टॉडलर हम जिसे जनरली कहते हैं, वो अगर है किसी का, किसी पेरेंट का अगर एक 2 साल का बच्चा है, तो कोशिश ये करेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट काम भी वो कर रहे हैं ना, they'll try to have an eye on him or her, एक क्लोज आई, एक क्लोज मॉनिटरिंग हर वक्त चलती रहेगी उसकी तरफ, ताकि वो कुछ ऐसा ना कर दे जो उसके लिए हार्मफुल हो सके। आपको पता है ये चीज, आपने भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द। तो हम क्या करते हैं, मैं अगर यूं बैठा हुआ हूं, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा मेरे इर्द गिर्द इतनी सी सिर्फ एक सर्टेन रेडियस में, इसी रूम के अंदर वो करीब करीब रहे, यानी कुछ भी ऐसा कर रहा हो जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, तो आई कैन स्टॉप him or her exactly over there क्विकली। क्विक रिस्पॉन्स जरूरी है क्योंकि 2 साल का बच्चा है। तो इसलिए आप समझ रहे हो, उस तरीके से भी अगर हम देख रहे हैं इस बात को, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन है, जनरली होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं बड़े वाले बच्चे होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं या अट्रैक्शन नहीं होता, बट ये एक नेचुरल चीज है। उससे उस अफेक्शन की भी नीड ज्यादा होती है, अट्रैक्शन की नीड भी ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है छोटे बच्चे पे, ठीक है। वो तो और भी फैमिली मेंबर्स का होता है, बट पेरेंट का एक अलग ही होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि बस वो इर्द गिर्द ही घूमता रहे, कुछ भी करे फौरन से पकड़ लिया जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि वो जो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वो जो 2 साल का बच्चा है जो इतने क्लोज आपके बस घूम ही रहा है सिर्फ, उसकी अपनी कोई फ्री विल नहीं है। ऑल्दो हम समझते हैं कि उसकी फ्री विल उसके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकती है, मे बी अगर वो कोई ऐसी चीज कर दे, कोई ऐसी चीज खा ले, उठा ले, जो कि सही नहीं है उसके लिए।
और कोशिश भी करते हैं कि ऐसी कुछ चीजें ना रखी जाए बच्चों के लिए, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो उसे स्टॉप करने के लिए फौरन से हम अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम अट्रैक्शन, फौरन से पकड़ लिया, कुछ भी किया फौरन से पकड़ लिया। तो बच्चे की कोई फ्री विल नहीं है, बच्चे की अपनी कोई एनर्जी नहीं है। इसलिए वी से दैट द फर्स्ट चाइल्ड, एक्चुअली द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दिस 2 year old, आई जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू जस्ट रिलेट दिस, उसकी कोई फ्री विल नहीं है, उसकी अपनी एनर्जी लीस्ट है, लोवेस्ट है, मिनिमम है। ठीक है। अब दूसरे बच्चे की बात करते हैं बेटा, 8 साल का बच्चा है, ठीक है ना, 8 year old चाइल्ड। ठीक है। वो, आप यहां बैठे हो घर के अंदर, कमरे के अंदर, और बाहर गार्डन में खेल रहा है, बाहर स्ट्रीट पे खेल रहा है, स्ट्रीट पे साइकिलिंग कर रहा है। तो ही और शी हैज दैट पर्टिकुलर लिबर्टी मोर देन दैट 2 year old टॉडलर। तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी फ्री विल ज्यादा है। फ्री विल इज कंसिडर्ड टू बी एनर्जी इन दिस केस फॉर दिस एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो वो जब कुछ कर रहा है कंपैरेटिवली, तो बाहर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, इन केस किसी के साथ कुछ लाए हो जाती है, कुछ गलत बात हो जाती है, तो आप इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अट्रैक्शन कंपैरेटिवली उसकी तरफ उतना नहीं है, उतना कनेक्शन नहीं है, उतना क्लोज वो नहीं है आपसे, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो इस वजह से उसका फ्री विल कंपैरेटिवली ज्यादा है, यानी कि एनर्जी ज्यादा है। सो वी से जो सेकंड शेल है, उसकी एनर्जी फर्स्ट शेल से ज्यादा है, एज इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। तो हम ये कहेंगे, द सेकंड शेल हैज मोर एनर्जी देन द फर्स्ट शेल। ठीक है। और इवन मैं अगर बात करूं बेटा सेकेंड से थर्ड की, तो सेकेंड शेल हैज मोर एनर्जी देन द फर्स्ट शेल, एंड द थर्ड शेल विल हैव मोर एनर्जी देन द सेकेंड शेल। और ये बढ़ता ही चला जाएगा। तीसरा बच्चा जो है बेटा, वो 18 years ओल्ड है, ना कोई टोडलर है, ना कोई चाइल्ड है, एक एडल्ट है वी कैन से, या एक टीन एजर है, बिकॉज 19 तक जनरली हम टीन एज ही कंसिडर करते हैं, टीन आ रहा होता है उसमें। सो वो इनसे काफी ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली। दैट चाइल्ड हैज अ फ्री विल, ऑल्दो वी नो दैट 8 नंबर थिंग के उसमें भी हम 8 को ही कंसिडर करते हैं, बट जस्ट टू गिव यू दिस एग्जाम्पल आई एम लिंकिंग इट अप लाइक दिस। ठीक है बेटा, आई एम लिंकिंग इट अप लाइक दिस जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। तो बेटा एज आई वाज सेइंग के हमारे पास जो सेकंड शेल है, उसके बाद जो थर्ड शेल है, फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग, उसमें हम उसको 18 के हिसाब से यूज करें, दैट दिस इज द थर्ड चाइल्ड, द यू कैन से एल्डेस्ट वन, द ओल्डेस्ट वन, जो कि हमारा 18 साल का है। ठीक है, 18 साल का बच्चा है वो, स्कूल गया हुआ है, कॉलेज गया हुआ है, फ्रेंड्स के साथ मे बी इफ यू अलाउइंग ट्रिप पे गया हुआ है, कहीं आउटिंग पे गया हुआ है। तो ही हैज इवन मोर विल, like free will than the first one and even the second one, क्योंकि वो फर्दर अवे है, थोड़ा सा एक डिस्टेंट हो जाता है पेरेंट्स से, थोड़ा सा एक अवे हो जाता है। तो जितना इस तरीके से अवे होता रहता है, उतना उनकी अपनी एक खुद की एक थोड़ी सी वो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं, और थोड़ा सा अट्रैक्शन और कंपैरेटिवली कम होता रहता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस से आपका शेल दूर होगा, उतना उसका अट्रैक्शन कम होगा। और जितना अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन मतलब खिंचाव जो उसकी तरफ है वो कम हो रहा है, तो वो ज्यादा दूर होने की वजह से जो करना चाह रहा है वो कर सकता है, जितना ज्यादा दूर होता जाएगा। पहले शेल से ज्यादा दूसरा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, लाइक दिस इट इंक्रीजेस। सो विल लाइक जस्ट एंड इट अप ओवर हियर। द सेकंड शेल इज मोर एनर्जी देन द फर्स्ट शेल, एंड third shell has more energy
healthy attraction decreases. बेटा यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन शेल्स इनिशियली व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, ये अगर अभी किसी को भी क्लियर नहीं है, किसी एक को भी क्लियर नहीं है, तो प्लीज बेटा आस्क मी, प्लीज कंफर्म. क्लियर सर। I need answers from everyone. Abdullah, Abida, Aisha, Iman, Fatima, Clear, Hamza, sir. Hamza, Ryan, Omar, Sara, Shekina, Uruj. Sir, it's clear. Okay, beta. I hope I'm getting answers from each and every one of you, and keeping that in mind, I'll be moving forward. But still, if you have anything, you can ask me while I'm saying. Okay, so this is regarding the electron shells all in all, overall. अच्छा, अब हम आ जाते हैं like very much towards the end. हम आ जाते हैं बेटा towards the, ये नाम के साथ मेरे 2 क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ओके ओके, +2. ठीक है बेटा. सो अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द लास्ट थिंग प्रोबेबली वी कैन से, जिसके साथ एक चीज कनेक्टेड है ऑल दो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सो आई राइट इट ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल ऑफ यू, देन विल डिस्कस इट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन.